الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمین. کرناٹک کی راجدھانی بنگلور کی سرزمین پر ملک کی سب سے مقتدر اور مؤثر امبریلا تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا 29واں اجلاس اور اس کے آخری دن آج کا یہ عظیم الشان اور تاریخی جلسہ اس کے صدر عالی وقار بورڈ کے صدر محترم، اسٹیج پر موجود آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اکابرین، بالخصوص امیر شریعت کرناٹک، ملک کے مختلف حصوں سے تشریف لائے ہوئے علماء اکرام، قائدین ملت، اور اس عظیم اجلاس میں شرکت فرما رہے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اسلامی شریعت کے پاسداروں، ملت مسلمہ کے بالخصوص نوجوانوں اور جیالوں. 2 دن سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اجلاس بنگلور کی سرزمین پر منعقد ہے. آپ کے بیچ میں ہم لوگوں کو صرف جذباتی تقریریں نہیں کرنی ہے، بلکہ اس نہایتی موقر اور باوقار اسٹیج سے ملک اور آپ کی خدمت میں کچھ پیغامات بھی پیش کرنے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آپ کی قیادت بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے امیر شریعت پچھلے کئی ماہ سے لگاتار بیمار ہے. بورڈ کے صدر محترم کو آپ دیکھ رہے ہیں عمر کے کس حصے میں ہے. بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا مجددی صاحب کی عمر کیا ہے، لیکن میں آپ تک پرسنل لاء بورڈ کا یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ تمام قیادت اس ملک کے موجودہ حالات سے اور آپ کے تعلق سے پیدا ہونے والی ناانصافیوں اور ظلم سے کتنی بے چین اور بے قرار ہے، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہو سکتا. ملک کو جس راستے پر لے جانے کی پچھلے کئی سالوں سے جو کوشش ہو رہی ہے، وہ ملک جس کو ہم ہندوستان کہتے ہیں، یہ عظیم الشان دیش جو ہمارا بھی عزیز وطن ہے، یہ ایک غلط سمت میں چل پڑا ہے. ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ہندوستانی شہری کے پوری طاقت کے ساتھ اس ملک کی سمت کو بدلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. لوگوں نے یہ غلط سمجھ لیا ہے کہ ہم صرف اپنی لڑائی لڑنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر سارے مجمع میں موجود لوگ یہ پیغام جا کر کے عام کریں کہ ہماری لڑائی اس ملک میں کسی برادران وطن سے نہیں ہے. ہمارا جھگڑا ملک کی کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے نہیں ہے. ہمارا یہ اجتماع کسی دوسری قوموں سے کسی لڑائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ مجمع، ہماری یہ لڑائی، ہماری یہ صدائے احتجاج خود اس ملک میں اپنے دستوری اور مذہبی حقوق کے تحفظ کے لیے ہے. ہماری یہ ساری جدوجہد برادران وطن کو ساتھ لے کر اس ملک کے دستور کی بالادستی، قانون کے تحفظ اور اپنی اسلامی
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाइंसाफी के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना बहैसियत मुसलमान के भी हमारे जिम्मेदारी है और बहैसियत सच्चे हिंदुस्तानी के भी हमारे जिम्मेदारी है। हम अपने उस फरीदे को अदा करने के लिए निकले हैं। मैं नौजवानों तुमसे कुछ बातें करके यहां से गुजरूंगा। मायूस होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिक्र करने की जरूरत है, संजीदा रहने की जरूरत है, पुरअमन रहने की जरूरत है और मुत्तहिद रहने की जरूरत है। आप दो मसलों से इस वक्त गुजर रहे हैं। आपके सामने कुछ इंटरनल मसाइल हैं और आपके सामने कुछ खारजी मसाइल हैं। आपके इंटरनल मसाइल भी अच्छे खासे हैं। मिसाल के तौर पर मैं नौजवानों तुमसे कहता हूं, तुम पढ़ते क्यों नहीं? तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम शरीयत मुताहरा की पाबंदी अपनी जिंदगी में क्यों नहीं करते? तुम्हें करना चाहिए। तुम्हें इस्लाम की एक एक अहकामात को अमली जामा पहनाकर अपनी जिंदगी में दुनिया के लिए नमूना बनना चाहिए। तलाक के मसले तुम में क्यों ज्यादा पैदा हो रहे हैं? क्या बात है कि तुम्हारी मस्जिदें आबाद क्यों नहीं होती हैं? तुम्हारे दरमियान से गैर शरई रसूमात, शादी ब्याह, ये सब कुछ क्यों बिगड़ते चले जा रहे हैं? तुम्हारी शादियां कितनी महंगी हैं। गरीब घरों की बच्चियां पढ़ी लिखी बाकिरदार हसीन सीरत के साथ अपने घरों में बैठी हैं। क्या तुम इसकी तरफ तवज्जो देते हो? तुमने अपनी जिंदगी का एक एजेंडा बना रखा है। तुम्हारे एजेंडे में 3 चीजें हैं जो हम जैसे लोगों को फिक्रमंद बनाती है। तुमने सोच रखा है कि शायद तुमने अपनी जिंदगी के 25 साल में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया, उसके बाद तुम्हें अब रोजगार की जरूरत पड़ी, तुम्हें रोजगार मिल गया। जब रोजगार मिल गया तो तुम्हें जरूरत हुई कि अब शादी हो जाए, एक अच्छा मकान, एक अच्छी गाड़ी मिल जाए और तुमने समझा कि तुम्हारी जिंदगी का एजेंडा मुकम्मल हो गया। ऐसा नहीं है। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको बता दीजिए कि बेशक हमारी नमाजें, हमारी कुर्बानियां, हमारा मरना, हमारा जीना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तुम्हारे एजेंडे में दीन शरीयत की पाबंदी है? तुम्हारे एजेंडे में क्या खिदमत खल्क है? तुम्हारे एजेंडे में क्या 2 घंटे निकालकर गरीबों की मदद करना है? कि तुम्हारे एजेंडे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पैगाम को आगे बढ़ाना है? हमें नहीं लगता कि तुमने अपने एजेंडे में बहैसियत मोमिन के इन सब चीजों को शामिल कर रखा है। मैं मुस्लिम नौजवानों तुमसे गुजारिश और अपील करके जाता हूं, तुम बहैसियत मुसलमान मोमिनाना किरदार अदा करते हुए इस मुल्क में अपने कैरेक्टर के साथ जिंदगी जीना सीखो। जिस दिन तुमने अपने आप को इंसानियत की खिदमत के काबिल 100% बना लिया, इस मुल्क में एक नया इनकलाब खड़ा हो जाएगा, जिस इनकलाब का हम इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम्हें इसकी फिक्र होती है? क्या मुल्क में रात को कौन भूखा सोता है, दूसरे मजलूम कौन है, दूसरे महरूम कौन है? इसकी फिक्र भी हमारी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारियों को उठाने की कोशिश करो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तुम्हारे लिए भी फिक्रमंद रहता है। हम जज्बाती नारे लगाते हैं, हम जज्बाती गुफ्तगू करते हैं। अभी मुल्क के हालात हो सकता है मजीद संगीन हो। अपने जज्बात पे काबू रखना, बगैर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अपनी क़यादत के एक कदम भी आगे मत बढ़ना। लेकिन जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई आवाज दे तो अपने घरों में भी बैठे मत रहना, उसकी आवाज पर लब्बे कहकर, क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड पुरअमन तरीके पर एहतजाज के लिए आवाज देगा। अपने घरों से निकलना और इस मुल्क के दस्तूर और कानून को बचाने के लिए और अपने तशख्खुस को बचाने के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े होकर अपने हिस्से का किरदार अदा करने की कोशिश करना। ये वक्त हो सकता है आने वाले दिन कुछ लड़ाई के लिए हमको बढ़ जाए। आपके स्टेट में एक अच्छी हुकूमत नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि सड़कों पर इस क़यादत के आने के बाद एक ठीक ठाक इंतजाम नजर आ रहा है। लगता है कि आपके साथ ताउन है। चूंकि इस वक्त
जो हुकूमत यहाँ पर है वो हुकूमत और उस हुकूमत के मरकजी लोग इस बिल में भी हमारे साथ खड़े हुए हैं और वो भी कह रहे हैं कि इस बिल को वापस होना चाहिए। ये तमाम लोग हमारे साथ खड़े होकर हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अरबाब इक़्तिदार ये चाहते हैं कि लड़ाई हिंदू और मुसलमानों की आमने सामने हो जाए और एक लंबी दीवार खड़ी हो जाए। उनकी ये कोशिश है, हमें इस कोशिश को भी नाकाम कर देना है। करोड़ों हिंदू हमारे साथ खड़े हुए हैं। बाबरी मस्जिद की लड़ाई हमने लड़ी, 10 हिंदू वकील हमारे साथ थे। 3 तलाक की लड़ाई हमने लड़ी, 10 हिंदू वकील हमारे साथ थे। जो लड़ाई हम लड़ते हैं 10 बिरादरान वतन हमारे साथ खड़े रहते हैं। हम और वो मिलकर इस मुल्क की फजा को बेहतर बनाने की पूरी जद्दोजहद करेंगे। हमारे प्रोग्राम में आते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं और इस मुल्क को गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे। आपसे मैं ये बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक यही पैगाम नहीं है कि अगर वक्त का मसला आ गया है तो हमें सिर्फ इसकी लड़नी है। उसका एक मुसलसल प्रोग्राम चलता है। उसमें इस्लाह माशरा, तफहीम शरीयत जैसे अजीम शान उसके पास मौजूआत हैं जिसके लिए ये पूरी क़यादत जद्दोजहद करती है, आपके ताउन से करती रहती है। मैं इसके साथ साथ आपसे कह करके अपनी बात गुजरता हूं कि मायूस मत होना, मुत्तहिद रहना। तुम्हारे अंदर इंतशार की कोशिश होगी। मैं कभी कभी ये पैगाम देता हूं कि नौजवानों और मुसलमानों 3 चीजों को अपने लिए पैगाम और नसीहत समझो बुजुर्गों की। मुताल्लिम बन जाओ, पढ़ने लिखने लगो। नंबर 2 सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ। नंबर 3 आपस में इत्तेहाद को पूरी तरह से कायम रखो। उम्मीद है कि आज का ये मजमा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टेज से ये पैगाम जा रहा है कि हम सब पूरी तरह से मुत्तहिद हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मायूसी से निकलना, खौफ से निकलना, हरास से निकलना और याद रखना, किसी गैर मुस्लिम शायर का ये शेर है, ये हिंदुस्तान न मेरा है न तेरा है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। इस बात को लोगों को समझना चाहिए। मैं आपसे अपने इन अशार के साथ आखिरी बात कह के गुजरता हूं। ये वक्त माना है सख्त मुश्किल, ये वक्त माना है सख्त मुश्किल, इसी से होगा शऊर हासिल। ये वक्त माना है सख्त मुश्किल, इसी से होगा शऊर हासिल। तबाए इल्म हुनर पहनकर बदल दो अब जिंदगी के मंजर। तुम अपनी फिरदौस खुद बनाओ, मसरतों की बहार लाओ। अपने अंदर के हालात भी बदलो और बाहर के हालात भी बदलो। हमारे साथ खड़े रहो, हमारे साथ चलो संजीदगी के साथ। इंशाअल्लाह तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मुल्क में फिरका परस्ती के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए हैं। अगर अकेले भी रह जाएंगे तो आखिरी सांस तक इस मुल्क में, अभी सही कह रहे थे आरिफ मसूद कि एक मुट्ठी खाक अगर कहीं से उठाओ और इसको निचोड़ो तो उसमें से जो खून और लहू के खतरात टपकेंगे उसमें दूसरों से ज्यादा हमारे असलाफ के खून के कतरात शामिल होंगे। हमने इसे बनाया है, हमने इसकी तामीर की है, हमने इसकी तश्कील की है। हम इसके दूसरे नंबर के शहरी नहीं हैं, हम इसके वारिस हैं। सबकी तरह हम इसके वारिस हैं। हमारी विरासत छीनेगा कोई, औकाफ छीनेगा कोई, नमाजों से रोकेगा कोई, मस्जिदों से रोकेगा कोई, मदारिस कायम करने से रोकेगा कोई। हमारा नहीं, इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों का मुआहिदा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है और ये सारे हुकूक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं। इसकी लड़ाई पूरी ताकत के साथ इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे। इस पैगाम के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। इसी खाक से, इसी जमीन से उभरते चलो, बढ़ो दिलेरो, अंधेरों से जंग करते चलो। सिसकती रात का सांचा पिघलने वाला है और सहर करीब है, सूरज निकलने वाला है। बोले नारे तकबीर, बोले नारे तकबीर, नारे तकबीर। आखिरी बात आपसे संजीदगी के साथ कह के गुजरता हूं कि ये लड़ाइयां चलती रहेंगी, नए नए मसाइल उठते रहेंगे। हर नया तुलू होने वाला सूरज मसाइल के हुजूम के साथ आता है। लेकिन एक बात को याद रखना, 3 चीजों को
پڑھائی نہیں چھوڑنی ہے، روزگار بڑھیا سے بڑھیا حاصل کرنا ہے، اقتدار میں حصہ داری قائم کرنی ہے اور ہندوستان کے پورے نظام کے اندر اپنے دخل اور اپنے حصے کی تیاری کی لڑائی ہمیشہ لڑتی رہنا ہے، تیاری بھی کرنا ہے، حقوق بھی حاصل کرنے ہیں اور لڑتے لڑتے اپنے حق کے ساتھ عزت کی زندگی اس ملک میں جینے کے سارے انتظام اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ کرنے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔